मुझे एक ही बात कहनी है, वो प्रश्न के रूप में आज कैसे आती है। आज भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र प्रसारित हुआ है, लेकिन हम ये चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं वह एनडीए के रूप में लड़ने जा रहे हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें अब तक हमारे साथ अकाली दल था, शिवसेना थी और जेडीयू था। और इन पिछले 3 महीनों में हमारे साथ चौटाला जी की पार्टी हरियाणा से जुड़ी है, उत्तर प्रदेश से चौधरी अजीत सिंह जी की पार्टी जुड़ी है और असम से असम गण परिषद जुड़ी है और आज गोरखालैंड मुक्ति मोर्चा वे भी हमारे साथ जुड़े हैं। अब ये सब मिलकर के मैं इनको ये तो नहीं कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, उसको आप स्वीकार करिए, ये मैं उनको देंगे और उनको कहेंगे कि इनमें से जो जो आपको स्वीकार्य है वो भी बताइए। इन दिनों में जसवंत सिंह जी और बाकी हमारे साथी एनडीए का एजेंडा फॉर गवर्नेंस, विजन फॉर द पार्टीज फ्यूचर, फॉर द गवर्नमेंट फ्यूचर, ये सब तैयार कर रहे हैं। और पहला मतदान का दिन है 16 तारीख। 16 तारीख से पहले हम एजेंडा ऑफ गवर्नेंस भी रिलीज करेंगे तैयार करके, और इन सब साथियों से सलाह मशवरा करके, ये जरूर हमको आपको कहना है। बाकी कोई आप सवाल पूछना चाहें तो अध्यक्ष जी, जोशी जी और बाकी लोग जवाब देंगे। जी, मेरा सवाल है अडवाणी जी से, मेरा सवाल है, मैं विकास हूँ लाइव इंडिया से, कि सब कुछ सभ्यता की रक्षा का जो कॉलन है उसमें सब कुछ है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का इसमें जिक्र नहीं है। क्या पार्टी ने ऊपर है रविशंकर जी, वो एम्पावरमेंट ऑन वीमेन है। अडवाणी जी, मेरा आपसे सवाल है कि अगर एनडीए सत्ता में आता है तो पहले 100 दिन का एक्शन प्लान क्या होगा आपका, कुछ है? वो सत्ता में आने पर मिलेगा आपको। देखिए, वो आएगा, वो जो है मैं उसी के लिए छोड़ा है कि जो एनडीए का कार्यक्रम बनेगा उसमें हमने वैसे सोच रखी है कुछ बातें, लेकिन प्रमुख बातें जो हैं उनका उल्लेख इसी में किया है कि जो हम चाहेंगे कि शुरू में ही हो जाए। और आपने देखा होगा कि इस घोषणा पत्र के प्रकाशन से भी पहले एक आईटी विजन के नाम से एक डॉक्यूमेंट हमने प्रसारित किया। मैं समझता हूं कि आज के संदर्भ में उसका बहुत बड़ा महत्व है और मुझे विश्वास है कि हमारे एनडीए के सब साथी भी उसको स्वीकार करेंगे। रवि जी, भूपेन्द्र चौबे, भूपेन्द्र चौबे, उसके बाद अखिलेश। रवि जी, Rani ji, my question is for you. It's slightly deviated from the manifesto, but your calls asking the Prime Minister and Sonia Gandhi for a live television debate has invited a lot of criticism from the left party, saying that you're trying to create a two-party system within the country. What exactly, sir, are you trying to suggest? The question has nothing to do with the manifesto, but at the same time, I do not see why any course of action which only strengthens democracy and which makes it possible for the participants in an election to communicate with their electorate, that should be objected to. If it is going to lead to a two-party system, all the better. What's the objection to it? We have not been able to achieve a two-party system, which from the very beginning members of the Constituent Assembly longed for. But it is the BJP which can claim the credit of converting India's single dominant party polity into a bipolar polity. And today there is a bipolar polity. Let me tell you frankly that according to my assessment, there is no scope for a third government, for a third front government which does not have the support either of the BJP or of the Congress. There is no scope. It's a farcical illusion in the minds of people. There is going to be nothing of that kind.
It is either UPA or it is either NDA or now that they don't call themselves the UPA, they call themselves the Congress. माइक है? They say that we are going to the polls. It's a sad situation. I sympathize with them. The Congress party No today, supplementary, no supplementary. which till a month or two back functioned in the shape of the UPA. It had the leftist parties with it. The leftists abandoned it. Then they instead took up the Samajwadi Party. After some time, even the Samajwadi Party parted company. Then Lalu Prasad Party parted company. Then Ramvilas Party parted company. Then the PMK parted company. Perhaps the TRS also parted company. It's a sad situation. I have nothing to say. But मेरा आपको जवाब यही है कि कोई भी कदम जो लोकतंत्र को मजबूत करता है। नवमी का दिन है, आपने राम मंदिर का जिक्र किया है इस मुद्दे के अंदर, लेकिन हम जानते हैं कि ये सिर्फ बीजेपी का घोषणा पत्र है। जब एनडीए का मैनिफेस्टो या एजेंडा का गवर्नेंस आएगा, उसमें राम मंदिर नहीं होगा, 370 नहीं होगा, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा, तो फिर ये सिर्फ ख्याली बातें क्यों की जाती है, इस तरह की खोखली बातें क्यों की जाती है? आपको बताना चाहूंगा कि जब एनडीए की सरकार थी, उस समय एक बार एनडीए के सब लोग बैठे थे और उन्होंने इस बात पर सहमति प्रकट की थी कि अगर कोर्ट का निर्णय होता है या दो संप्रदाय के नेता बैठ करके आपस में समझौता करते हैं और कहते हैं कि हाँ, राम जन्म स्थान पर एक भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं, खुशी होगी। उनको आपत्ति अगर थी तो हमारी तरफ से पहले कहा जाता था कि हम संसद के द्वारा विधेयक पारित करवा करके भी मंदिर बनवाने की इच्छा रखते हैं। उस पर उनको आपत्ति थी, लेकिन बाकी जो दो रास्ते थे, कोर्ट के निर्णय के द्वारा या दोनों संप्रदायों की आपस की बातचीत के द्वारा, उन्होंने कहा हमको कोई आपत्ति नहीं। और आपको शायद ध्यान होगा, स्मरण होगा कि जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एक बार इसकी एक प्रामाणिक कोशिश भी की थी और उसमें कुछ प्रगति भी हुई थी। Advani ji, this is Mukesh Kaushik from United News of India. Just a minute, will you please wait? Joy PTI. Advani ji, then you and I. Advani ji, there was a very ambitious and much talked about report which is with the union government, the Structure Committee report, which is with the union government. So would the recommendations be scrapped or would the recommendations find the light of the day? I regard the Structure Committee report as an eye-opener for the whole country and the government. That after blaming us all the while for the present situation of the minorities, ultimately they had to tell the whole country that it is our failure that the minorities are in the present plight. So far as we are concerned, we feel that it is the duty of every government, irrespective of the party to which it belongs, to see that every citizen of the country gets justice without discrimination of any kind. So would the And this will recommendations be our commitment. would the recommendations Just a minute. Ravindra ETV, please. No supplementary, please. Advani ji इधर इधर सर हाँ, खड़े हो। एक सवाल का एक्सटेंशन है, पहले जो अखिलेश पूछे थे उसी का। कौन पूछा? रविंद्र जी से। रविंद्र ETV. खड़े हो जाइए रविंद्र, खड़े हो जाओ। हाँ, बोलिए रविंद्र जी। अरे खड़े होके बोलो ना आप जब 99 और 2004 में जब सत्ता में थे तो एनडीए गवर्नेंस की बात की, 98 में जब आप आए तो अपना मैनिफेस्टो लेके, 2009 में आ रहे हैं तो अपना मैनिफेस्टो लेके आप उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं जो हिंदुत्व और विचारधारा से संबंधित है। या सत्ता में आने के लिए ये दोनों मुद्दे जरूरी हैं? मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप जनसंघ के काल से लेकर के हमारे सारे इतिहास को और हमारे घोषणा पत्रों को, हमारे प्रस्तावों को पढ़ेंगे तो प्राय सब जगह शब्द राष्ट्रवाद होता था, भारतीयता शब्द का उपयोग करते थे। कभी कभी इस बात को भी समझाते थे कि हमारी दृष्टि से भारतीयता, हिंदुत्व, इंडियननेस ये पर्यायवाची शब्द है। उसको अगर ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरी देर हमारा चिंतन वह राष्ट्र हित के लिए है। मुझसे कोई पूछता है कि इन वन वर्ड हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बीजेपी, आई वुड से दैट बीजेपी इज अ नेशन फर्स्ट पार्टी। राष्ट्र सर्वोपरि, ये हमारी बीजेपी।